શું મારે મીઠાઈઓ ખાવાની બિલકુલ બંધ કરી દેવી પડશે તો જ મારું વજન ઉતરશે? बिल्कुल भी नहीं। मिठाई खाते खाते वजन कम करना है। જો વધારે ભૂખ્યો રહીશ તો જ મારું વજન ઇઝીલી ઉતરશે ને? बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा भूखा रहने से चांसेस ये हैं कि जितने अगर कम होगा तो स्पीड में फिर बढ़ेगा भी। વજન ઉતારવા માટે મારે રોટલી અને ભાત બંને બંધ કરી દેવું જોઈએ ને? बिल्कुल भी नहीं। रोटी और चावल खाते खाते वजन कम कर सकते हैं। શું ફાસ્ટ ફૂડ દર વખતે અનહેલ્ધી જ હોય? नहीं, फास्ट फूड अनहेल्दी नहीं होता है। फास्ट में से एस निकाल दो तो फैट फूड अनहेल्दी होता है। વજનના લીધે કોઈ રોગ તો ના જ થાય ને? 70% बीमारियों की वजह ही ज़्यादा वजन है। અચ્છા, તો માની લો વધારે વજનના લીધે મને કોઈ રોગ થઈ જાય છે, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર કે બીજું કંઈ બી, તો એ પાછું રિવર્સ તો નહીં જ થઈ શકે ને? जब वो बीमारी आई है सिर्फ इस वजह से कि वजन बढ़ गया, तो जब वजन ही नहीं रहेगा तो किसके भरोसे वो रहेगा? रिवर्स की जा सकती है। શું સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડને ડાયટ ફૂડ ગણી શકાય? साउथ इंडियन फूड को डाइट फूड बोले उससे अच्छा है हम उसको हेल्दी फूड कंपेरेटिवली बोल सकते हैं। જો સેલેડ ખાવાનું વધારી દઈશ તો મારું વજન જલ્દી ઉતરશે ને? अति सर्वर्थ वर्जियत, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं। તો પછી કઈ રીતે હું વજન ઉતારી શકું ઇઝીલી અને બધા રોગને પણ રિવર્સ કરી શકું? तुरंत कुछ नहीं होगा, इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર અને હેલ્ધી લિવિંગ આ વસ્તુ તરફ દુનિયામાં અત્યારે બધા લોકો વળી રહ્યા છે અને હેલ્થને ચેઝ કરવા માટે અલગ અલગ વસ્તુઓ ટ્રાય પણ કરી રહ્યા છે. હવે હેલ્ધી રહેવા માટે ડાયટને એક ફોલો કરવું પડે, પ્રોપર વસ્તુઓ ખાવી પડે, આપણા સૌને ખબર છે, પણ શું ખાવાનું એ નથી ખબર. અને એ કોને પૂછવાનો છું એ બહુ જ એક સ્પેશિયલ વ્યક્તિ છે. વ્યક્તિ કોણ છે? તો એ છે ભાવના સિન્હા મેમ. મેમ, થેન્ક યુ સો મચ અમને સમય આપવા માટે. મેમનું ટૂંકમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો મેમ એક વેલનેસ કોચ છે. મેમ જોડે એક વાત કહું, ઓલરેડી એક વિડીયો આપણે કરી દીધો હતો, જે વિડીયોને તમે લોકોએ બહુ જ પ્રેમ આપ્યો છે. બહુ જ બધા લોકોની લાઈફ પણ એ વિડીયોએ ચેન્જ કરી છે. એ કમેન્ટ્સ જોઈને ખબર પડે છે. આ વિડીયોમાં મેમે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કીધી હતી કે આપણું વજન વધારે છે એ ખબર કઈ રીતે પડે? તો જ્યારે આપણું હાઈટ આપણે સેન્ટીમીટરમાં જોઈએ એમાંથી 100 ઓછા કરી દઈએ તો જે આંકડો આવે એ આંકડા કરતાં વધારે વજન હોય તો આપણે ઓવરવેટ કહેવાઈએ. મારું વજન પણ મને ઓવરવેટ લાગ્યું હતું અને એટલે મેં પણ ડાયટ ફોલો કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. હવે આ ડાયટ ચાલુ કર્યું ને એમાં મને ઘણા બધા પ્રશ્નો થયા, જે પ્રશ્નો આજે પૂછવાનો છું. પણ મેમ વિશે બીજી એક વસ્તુ હું તમને કહેવા માંગુ છું. અત્યાર સુધી મેમે 500થી વધુ લોકોની હેલ્પ કરી છે 1000 કિલોથી વધુ ઉતારવામાં. હવે મેમને જે આ ફિલ્ડમાં લોકોની હેલ્પ કરવાનું ગમે છે ને એના માટે થઈને જ મેમે બેંક ઓફ બરોડાની જોબ છોડીને હવે ફૂલ ટાઈમ આ ફિલ્ડ સાથે સંકળાઈ ગયા છે. અને એટલે જ હવે પહેલો પ્રશ્ન હું મેમને એ પૂછવા માંગુ છું કે કઈ પ્રકારના ફૂડ હોય છે જે ફૂડના લીધે આપણું વજન વધી જાય, કે કઈ પ્રકારની એવી લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે જે અનહેલ્ધી હોય? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कि हम ये दूसरा आपके डाइट बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं हम लोग अभी। सबसे बड़ी बात है कि 2 क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है कि कैसा डाइट होना चाहिए और कैसा लाइफ स्टाइल है। तो डाइट एक्चुअली क्या होना चाहिए? 30% रोल है जो डाइट का है और 70% रोल है जो लाइफ स्टाइल का है। तो खाना और लाइफ स्टाइल दोनों की बैलेंसिंग जरूरी है। तो 30% का लाइफ स्टाइल जो खाना है उसका सीधा सा महत्व ये है कि 3 मील के लिए मिनिमम 3 मील हमारा होना चाहिए। हम जो जनरल औसतन पीपल, क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो 5 से 8 में जाएगा, या कोई जो भी हमारी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो प्रॉपर जिम वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको भी जाएगा। लेकिन एक सामान्य इंसान को 3 खाना खाना चाहिए गुंजी, और वो तीनों खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। अब बैलेंस्ड क्या है? जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बोलती है कि बैलेंस खाना क्या है, तो 40% प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट और 30% फैट है। अब यह हम किसी भी चीज़ को कम नहीं कर सकते, और वो हमारे खाने के रिसोर्सेज क्या क्या हैं उस पर निर्भर करता है। और सबसे अच्छा खाना वो होना चाहिए कि आप जिसमें प्रकृति से जो हमें मिला है वो आप खाएं। और प्रकृति से जो खाना मिला है, नेचुरल फूड वो है जो हमें देना है, अपनी बॉडी को देना है। प्रॉपर लाइफ स्टाइल की अगर बात करूँ, सिर्फ खाना महत्व का नहीं है, क्योंकि बॉडी है पानी से बना हुआ, तो वाटर इंटेक आपको प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल जो है, हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए बनी है। मशीन गाड़ी जैसे कार है ना, रखी रहेगी तो जल्दी चांसेस है ख़राब होने के, तो अगर हम इन्हें इसको बिठा दिया तो ख़राब होगा। तो लाइफ स्टाइल का मतलब है हमें एक्टिव होना चाहिए। तो आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो मिनिमम, मुझे ऐसा लगता है कि पैदल तो चल ही सकते हैं, मिनिमम पैदल चलिए, बाकी बेस्ड ऑन आपके गाइडेंस कि आप कितना वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी जरूरी है। दूसरा, अर्ली स्लीप, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू से सुनते आ रहे हैं और आज ये कहानियों किताबों में रह गया, लेकिन यही सही महत्व रखता है हमारे आइडियल लाइफ स्टाइल के लिए। अननेसेसरली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं,
अननेसेसरली दूसरों के झगड़े देख रहे हैं हम, तो वो सारी चीज़ों से हमारे माइंड को क्या मिल रहा है? खाना जो है 30% फूड वो सिर्फ पेट के लिए जरूरी नहीं है। 70% लाइफ स्टाइल सही करने के लिए मेंटल फूड बहुत जरूरी है, इमोशनल फूड जरूरी है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस सराउंडिंग्स में है, जहाँ उठना बैठना है, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उनकी बातें कैसी है। अरे अब क्या करोगे वजन कम करके, अरे अब क्या करोगे, तो अब तो 2 बच्चे की माँ हो गई हो, जैसे मैं सुनती थी, सीनियर मैनेजर हो, इतना तो मोटापा रहेगा ही। ये सराउंडिंग्स बदलना ज़रूरी है लाइफ स्टाइल के लिए। उन सारे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है जो एक्टिव लाइफ स्टाइल चाहते हैं, क्योंकि आपकी अगर चाहत है हेल्दी होना ना, तो पहले सर्च इंजन चालू कर दीजिए कि हेल्दी है कौन, फिर उनको देखिए, उनकी संगत को अपनाइए। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्दी सराउंडिंग्स होना। जो दवाइयाँ खाते हैं या जो लेट नाइट जगते हैं, लेट नाइट उठते हैं, उनके बीच आप हेल्दी नहीं हो सकते। जो जंक फूड खाते हैं, जो कभी सलाद नहीं खाया, उनके बीच रह करके आप हेल्दी डाइट में नहीं जा सकते हैं, छोड़ देंगे वो। अपनी रंग बदलने के लिए उन रंगों को छोड़ना है जिस रंग में रंगना नहीं है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल का 70% रोल प्ले करता है कि अपनी संगत सुधारें और अपने रंगत को बदल डालें। खाना तो खुद ब खुद बदल जाएगा। વાવ, તો હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન હું એ જ પૂછવા માંગુ છું કે એવી કોઈ ખાવાની આદતો છે જે આદતોના લીધે મેદસ્વીતા, ઓબેસિટી કે પછી આપણે જાડા થઈ રહ્યા છે? यस, बिल्कुल। खाने की आदतों की वजह से ही मोटापा ज़्यादा हो रहा है, और ये जो खाने की आदतें हैं यही है लाइफ स्टाइल। क्योंकि खाना हम क्या खा रहे हैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर देखने के लिए मिल रहा है कि एक हेल्दी डाइट की तरफ सब जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की मंचिंग स्टार्ट हो रही है। स्नैक्स के रूप में ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। मुझे ऐसा, अगर खास करके अगर मंचिंग की बात करूं, मेरा पूरा रहेगा एम्फसाइज, मैं ये कहना चाहूँगी मंचिंग को ध्यान दें। क्या मंचिंग कर रहे हैं, कितना मंचिंग कर रहे हैं, कब मंचिंग कर रहे हैं। कई बार हम डिनर के बाद भी सोने से पहले मंचिंग कर लेते हैं, लंच के तुरंत बाद मंचिंग करते हैं। और मंचिंग में क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स की जो स्किन है, ड्राई फ्रूट्स कभी भी बिना सोख के नहीं खाना चाहिए। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंटी न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत बिग बॉस है अपने आप में। दूसरी जो पोषक तत्व है उसको वो रोकता है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में, सेल्स तक जाने में। तो उसकी एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ कब सही होगी, जब वो सोक्ड होगा। तो अगर लेना भी है ड्राई फ्रूट्स, हमें थोड़ा खाना भी है, पोर्शन कंट्रोल करके मॉर्निंग में लें, जो कि रात भर आप सोक करके रखें। उसको मंचिंग में लेना सबसे गलत है। जो आपको लगेगा कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली बॉडी में अनहेल्दी जाता है। दूसरा इसका एक और रीज़न है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम मतलब क्या है कि ये खाने से पेट नहीं भरता है, और हम इसकी बजाय 1 मुट्ठी की बजाय 2 मुट्ठी खा जाते हैं। इसकी वजह अगर हम फ्रूट्स खाएं तो शायद 1 एप्पल का 2 एप्पल नहीं खाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स की जगह ये एक हैबिट को बदल के हम फ्रूट्स पे रख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं ना, कि स्नैकिंग पे हम देखेंगे हम क्या स्नैक करते हैं। बनाना चिप्स अगर खाते हैं तो बेटर है कि बनाना खाएं। मंचिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मंचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारी जो ओवरवेट वाली कंडीशन है उसमें वो हानि कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, हमें ओवरवेट कर रहा है। तो मंचिंग आई थिंक कि हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। તો પછી ક્યારે શું ના ખાવું જોઈએ? ऐसा कोई भी खाना नहीं है गुंजी जो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। हम आए हैं दुनिया में खाते पीते हेल्दी रहने के लिए, वजन कम करने के लिए हमें सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हम 84 लाख योनि में सबसे ज़्यादा यूनिक हैं। તો પછી ખાવાનું પ્રોપરલી ખાઈએ તો જ બધું ખાઈ શકીએ આપણે। તો એ પ્રોપર ડાયટ આપણો કેવો હોવો જોઈએ? હવે તમે મને આન્સર આપો ને કે પ્રોપર ડાયટ કેવો હોવો જોઈએ। એની પહેલાં હું તમને કહેવા માંગુ છું કે મેમ જોડે મારે વાત થઈ છે ડાયટને લઈને। આપણે મેમ જોડે એક્સપિરિયન્સ સેશન લઈ શકીએ છીએ 3 દિવસ માટેનું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ। આ એક વાત કહું ને, દરેક દર્શકો માટે છે। આ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેશન માટે તમારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરવાનો છે તમારી માહિતી, જેનાથી મેમની ટીમમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ તમારો સંપર્ક કરશે અને મેમ સાથેની એક એક્સપિરિયન્સ સેશન તમને આપશે પ્રોપર ડાયટ માટેની। પણ આ વિડીયો માટે મારે જાણવું છે કે પ્રોપર ડાયટ કેવું હોવું જોઈએ મેમ? प्रॉपर डाइट होने के लिए हमारा खाना क्या खा रहे हैं, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। खाना 2 तरह के होते हैं, सामान्य खाना और पोषक तत्वों से भरा हुआ सही खाना। तो आपका खाना सही है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर पका हुआ चीज़ कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा किचन में आग लगेगा उतना ज़्यादा जीवन में आग लगेगा। तो कच्चा खाना क्या है ना, डायरेक्ट हमें फूड जो मिला है नेचर से, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। वो हमारी बॉडी को सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारे रिच न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो हमारे कच्चे खाने में है।
जैसे जैसे हम खाना को गर्म करते हैं, पकाते हैं, और अभी यहाँ पर गुंजी ऐसा नहीं है खाना पकाते हैं, इवन कि पका करके ले जाते हैं लंच बॉक्स में, जो हमारी मजबूरी भी है, और हम उसको 4 घंटे के बाद खाते हैं, 5 घंटे के बाद खाते हैं। लेकिन जो घर बैठे बैठे सुबह का पकाया शाम खाते हैं ना, तो आपने खाना नहीं जहर खा लिया। क्योंकि हर खाना जो गर्म है, जो घर में पकाया हुआ है, वो 3 घंटे के बाद अगर आप खाते हो तो उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो रहे होते हैं। तो एक पका हुआ खाना 3 घंटे तक ही वो सुरक्षित माना जाता है, सही माना जाता है खाना खाने के लिए। तो अगर हम उसको लेट नाइट तक खाते हैं या रात का खाना सुबह खाते हैं, तो वो सही खाना नहीं है। प्रॉपर डाइट तो घर का खाना ही है, लेकिन प्रॉपरली हम बना करके खाएं तो પછી અગર પ્રોપર ખાવાનું આપણે નથી ખાતા તો એના લીધે કયા કયા રોગ થઈ શકે છે? और वो रोग आज जो आप जान रहे हैं, जो जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि किसका नाम लूँ, अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते तो सबसे पहले कहाँ कचरा जम रहा है, हमारे मिक्सी में, लीवर में। वो बेचारा परेशान है, उसकी क्लिनजिंग भी नहीं हो रही है। लीवर फैटी लीवर की जो स्टार्ट पॉइंट अगर हम बोले ना, वो क्लिनजिंग सही नहीं हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। और वहाँ से अगर आपके अंदर लीवर ही सही नहीं है, जो हमारा वॉचमैन है वही सही नहीं है, वही बीमार है, हर बीमारी की एंट्री मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, थायराइड है, जितनी भी लाइफ स्टाइल, और लॉन्ग रन में तो ये कैंसर तक की चीज़ों को, कोलोन कैंसर तक की चीज़ों को ले जा सकता है। लेकिन कब्ज, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसी सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको होने वाला है। તો પછી હવે આવા કોઈ રોગ થઈ જાય છે જે ઇમ્પ્રોપર ડાયટના લીધે થયા છે, તો એને રિવર્સ કઈ રીતે કરી શકીએ? जब वो आया ही है प्रॉपर डाइट नहीं रहने की वजह से, तो डाइट को ही प्रॉपर करके किया जा सकता है। अगर हमें ये पहचान हो जाए कि जो हमने खाया वो सही खाया या नहीं खाया, तो हमारा ध्यान जाएगा कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। पका हुआ खाना ही खाते हैं। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आते हैं गुंजी, जो बोलते हैं मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, सिर्फ घर का खाता हूँ, बाहर कभी खाया नहीं, अल्कोहल कभी लेता नहीं, लेकिन मैं ओवरवेट है। वो होते हैं 20 kg, 30 kg, 15 kg ओवरवेट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि सुबह में खाना पकाया है, शाम में खा रहे हैं, या रात की रोटी बच गई और सुबह में खा रहे हैं। और ऊपर से खास करके महिलाओं का जो सबसे बड़ा तबका आता है, जो बोलती है वो थोड़ा सा बचा था ना, इसलिए मैंने खा लिया। तो वो डस्टबिन किधर बना के रखा है? इधर बना के रखा है। बाहर उसके किचन का डस्टबिन है ही नहीं। हाँ। तो वो डस्टबिन अगर इधर है तो डस्टबिन को क्लीन करना पड़ेगा, तो बीमारियां तो जाएंगी। बोलते हैं ना, जिसके सहारे वो आया था उसका सहारा छीनना जरूरी है। हर लाइफ स्टाइल डिजीज, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैं थायराइड में थी, मैं डायबिटीज़ में थी, मैं माइग्रेन में थी, और मुझे फेशियल पैरालिसिस भी इसीलिए हुआ ही था क्योंकि मेरी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक थी। और अगर मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ सही खाने के साथ, सही लाइफ स्टाइल के साथ, तो आई थिंक कि एवरीवन कैन डू इट। તો પછી હેલ્ધી ખાવાનું ટેસ્ટી હોઈ શકે ખરું? एक सवाल गुंज जी, केला कैसा लगता है? केला अच्छा लगता है, पर कई सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो शायद मुझे नहीं अच्छे लगते। कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम खा लेते हैं। हाँ। तो खाना हमेशा टेस्टी होगा तभी हेल्दी होगा, ये वाला मिथ से हट जाते हैं। हेल्दी है इसीलिए वो टेस्टी है, इसीलिए उसके टेस्ट पर ध्यान देना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर मिथ है कि टेस्टी जो होता है वो अनहेल्दी खाना ही होता है। उसके लिए, टेस्ट के लिए हम बाहर जाते हैं, हेल्थ के लिए हमें पहले आएंगे। तो हमारी दुनिया जब अच्छी होगी, हम जब अच्छे होंगे, तो हमारा हर खाना टेस्टी होगा। વાવ, હવે ફાસ્ટ ફૂડનું મારે તમને પૂછવું છે। થોડા ટાઈમ પહેલા તમે મને કીધું હતું કે ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈ શકીએ, ફેટ ફૂડ ના ખાઈ શકીએ, ફાસ્ટમાંથી એસ કાઢીને। તો એ કઈ પ્રકારનું ફાસ્ટ ફૂડ આપણે ખાઈ શકીએ ને કેવું હોય? एक्चुअली तो हमें फास्ट फूड ही खाना चाहिए गुंजी, क्योंकि जनरली ये एक गिमिक है, ऐसा समझ सकते हैं। जिसको आज दुनिया फास्ट फूड समझ रही है, एक्चुअली वो फैट फूड है। फास्ट फूड का मतलब आप बताओ क्या? जो हमने खाया उससे तुरंत हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाना। जो खाया वो खाना बॉडी में लग जाना। तो क्या मैदा लग जाता है? क्या हमें जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स, जो भी तेल है वो लग जाता है? नहीं। बल्कि फास्ट फूड क्या है? सारे नेचुरल खाने, चाहे कोई भी फ्रूट्स आप ले लीजिए, कोई भी सैलेड्स आप ले लीजिए, जितने भी फ्रूट्स और सैलेड्स हैं जो कच्चे हैं वही फास्ट फूड है। क्योंकि वो हम उसको जब खाते हैं तो वो तुरंत हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तुरंत हाइड्रेटेड करते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली फास्ट फूड, जो नेचुरल है, जो सलाद है और जो फल है। और बाकी ये मार्केट के जितने फास्ट फूड के नाम से जाने जाते हैं ना, वो सारे फैट फूड है, उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। હવે હું થોડા સ્પેસિફિક વસ્તુઓના પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું। રોટલી અને ભાત, આ બંને વસ્તુ લોકો એવું માને કે આપણે ખાવાનું બંધ કરી દઈએ તો વજન ઉતરવાનું તરત ચાલુ થઈ જાય આપણું। પણ તમે થોડી વાર પહેલા એવું કીધું કે રોટલી અને ભાત ખાવાનું બંધ કરવાની જરૂરત નથી, એવું કેમ કીધું? ऐसा इसलिए कहा कि रोटी और चावल जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, और एक आम इंसान के लिए, हमारे इंडिया के लिए वो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड है।
जो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के तहत 40% कार्ब्स चाहिए, तो कार्ब्स का सबसे कॉमन सोर्स माना जाता है रोटी और चावल। अगर आप अब इसको ही छोड़ दोगे तो आपका मेन सोर्स ये इट इज़ जस्ट लाइक कि घर का दाल चावल छोड़ दिया और हम विटामिन की गोलियां खा रहे हैं, ऐसा बॉडी को ठीक रखने के लिए बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। तो रोटी और चावल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक कॉमन सा ट्रेंड भी देखते हैं, हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं, दोनों को मिक्स करके खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके खाना है। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो जो आपका मेन कोर्स ज़्यादा हैवी होने वाला है, तो अगर आप मिठाई भी खा रहे हो, रायता भी खा रहे हो या खीर भी खा रहे हो, सारी चीज़ें जहाँ पर कार्ब्स ज़्यादा है, उस दिन आप थोड़ा पोर्शन इसका कम करो। एकदम से खाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हम ग्लूटेन फ्री लाइफ जो आज जी रहे हैं ना, वो विज़न के लिए खतरनाक है। हमें गेहूं के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे विज़न के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चावल की ये चावल की प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे हीट के बॉडी हीट को कम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चावल और रोटी खाएं, क्योंकि वो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी फूड के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी हमारी कहती है कि रोटी और चावल खाना चाहिए। હવે તમે જે રોટી અને ભાતનું કીધું એ તો હું સમજી ગયો કે જે દિવસે રોટલી ખાઈએ એ દિવસે ભાત નહીં ખાવાનો, ભાત ખાવો એ દિવસે રોટલી નહીં ખાવાની, એ બંને મિક્સ કરીએ તો વધારે કાર્બોહાઈડ્રેટ થઈ જાય। હવે મારે મિક્સ ગ્રેન લોટનું પૂછવું છે કે ઘણી વખત ડાયટ ચાલુ થાય ને એટલે મિક્સ ગ્રેન લોટ બધા ચાલુ કરી દે, તો એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? इसके बारे में कुछ बोलूँगी गुंजी, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये समझना आम जनता को ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं ऐसा मानती हूँ, हर चीज़ की जो कोई भी ग्रेन होता है ना, उसकी डाइजेस्टिव टाइमिंग है। जितना वक्त रोटी को, गेहूं की रोटी को पचने में लगेगा, बाजरा को उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यही रीज़न है कि जब भी बाजरा की रोटी, जब भी कोई डाइट में जाता है तो बोलते हैं बाजरे की रोटी खाई, गर्म होता है। तो हर अनाज की अपनी पचने की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। अब आपने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके आप एक बार में खा लिए। बॉडी मल्टीटास्किंग नहीं करती, बॉडी के अंदर बहुत अच्छा से सिस्टम बना हुआ है। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, खाना खाते हुए मोबाइल भी देख रहे हैं, रील भी देख रहे हैं, किसी का मैसेज आया रिप्लाई भी कर दे रहे हैं। फिर बाद में खाने के बाद बोलती है वाइफ, जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, नमक कैसा था, टेस्ट कैसा था, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये कितना चीज़ लेगा दिमाग में। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, फूड के साथ बॉडी इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करता है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ एक बार में एक ही अनाज खाइए, सो दैट वो कंफ्यूज ना हो, सही तरीके से पचा सके और आपको कोई ब्लोटिंग, कोई આની ચીજ નહીં લગે। તો જો હવે મેઇન પ્રશ્નો તો મારે જે પૂછવા તે થઈ ગયા, પણ મારે હજુ એક જાણવું છે કે તમે આટલા એક્સપિરિયન્સ પછી આજે લોકોને શું ટીપ આપવા માંગો છો? व्यूअर्स को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आपके पास मुंह है, बॉडी के पास नहीं है। जब भी आपको बॉडी के अंदर कहीं पर भी दर्द महसूस होता है ना, छोटा सा चीज़ है, हेडेक हो रहा है, आपका एक हेडेक भी हर तरह की बातें बताता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं या स्ट्रेस में हैं या कुछ टेंशन है, नींद नहीं पूरी हुई, हर दर्द कुछ कहता है। अपने दर्द की आवाज़ सुनिए, क्योंकि बॉडी अपने पेन के द्वारा ही हमें बताता है कि कहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं इतना स्ट्रांगली इसको इसलिए बोलती हूँ गुंजी, मेरा ये मैसेज इसलिए है, काश, मुझे हमेशा अफसोस होता है कि काश मैंने मेरा सिर दर्द समझ लिया होता 4 दिन पहले, तो शायद मुझे फेशियल पैरालिसिस नहीं होता। क्योंकि फेशियल पैरालिसिस होने के 4 दिन 5 दिन पहले से मुझे सीवियर हेडेक हो रहा था राइट साइड, लेकिन ना तो मैंने ध्यान दिया कि मेरा बीपी कितना जा रहा है, 190 प्लस जा रहा था, और हेडेक कितना था कि नींद नहीं आ रही थी, चक्कर आ रहे थे। तो बॉडी के ऐसे जो भी सिम्टम्स हैं ना, इसको इग्नोर मत करिए। हर दर्द कुछ कहता है, उस दर्द की आवाज़ सुनिए और आपकी बॉडी को आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। વાવ, એટલે તમે જે વેલનેસ કોચ છો ને, એનાથી મને એક વસ્તુ ખબર પડે છે કે એક કોચ પોતાના એક્સપિરિયન્સ, પોતાના નોલેજથી આપણી જોડે કોઈ વસ્તુ શેર કરતા હોય ને, તો એનાથી આપણા જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓનો ફાયદો થઈ શકે છે। અને કદાચ તમે આજે એક કોચ બન્યા છો, તમને આ લોકોની હેલ્પ એટલે જ કરવી છે કે તમને નથી જોઈતું જે તમારી સાથે થયું એ લોકો સાથે થાય, લોકો હેલ્ધી રહે, એના માટે તમે આ કરી રહ્યા છો। બેસિકલી ભાવના મેમને મેં જેટલા પ્રશ્ન પૂછવાના હતા એ મેં પૂછી લીધા છે। કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવાનો જો રહી ગયો છે તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો, કે પછી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે નંબર ઉપર પણ એમને પૂછી શકો છો। ફરતી યાદ કરાવું છું, મેં વાત કરી છે, એક વાત કહું ના, દરેક દર્શક માટે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ 3 ડેઝની એક્સપિરિયન્સ સેશન તમને મળી શકશે। તમારા ડાયટને લઈને, હેલ્થને લઈને તમારે આ વોટ્સએપ નંબર ઉપર બસ તમારી માહિતી મોકલવાની છે। આ વિડીયોની માહિતી ગમી હોય તો આવી જ માહિતી માટે એક વાત કહું, જોતા રહેજો। અને થેન્ક યુ સો મચ મેમ, અમને સમય આપવા માટે। આપણે ફરી મળીશું।